Hello everyone, I am Megha Rohila. I am PhD scholar at National Institute of Biotechnology, which is situated in IRI, New Delhi. And I am last year PhD student. Today, I will teach you Unit 8th of CSIR exam, which is Inheritance Biology. And I will explain the Mendelian principle today. First of all, we will discuss about what is inheritance and how it will work. Inheritance is basically the reception of genetic qualities by transmission from parent to the offspring or progeny, and this is the characters which we inherit, means we acquired from our parents, and it gives us ability to learn, and it remains constant. It goes generation to generation. इस generation to generation inheritance genes और characters को आगे इनहेरिट करने में इनहेरिट होती है. ओके. Second is acquired characters. Acquired characters are the adaptation. Basically, these are the adaptations which we got from environment. Like अगर environment changes हुआ और कुछ characters को आपने खुद से acquire किया, not by from previous generation, these are called as acquired characters, and it is acquired by ourselves only, and it is dynamic and it can be changed. Before going to Mendelian principles, we will go through some of the theories given by different scientists before Mendelism era. And these theories are pre-formation theory, Darwin pangenesis theory, inheritance of acquired characters, and germplasm theory. In the pre-formation theory, it is given by Jane Swammerdam, and he's told that organism is already produced before fertilization, and it will grow after fertilization only. He said that progeny is always preformed before fertilization. I will show you like this is the sperm, and he told that this sperm has small miniature inside itself, which is called as homunculus, and this homunculus, after some time, after fertilization, it will grow into a new human or new self, new progeny after fertilization, and it will grow after some time and produce a whole organism. This is the pre-formation theory, which is given by Jane Swammerdam, and you can write it down also. You can write it down. I will dictate you. मैं बीच बीच में आपको डिक्टेट करा दूंगी कुछ कुछ लाइंस जो लिखने के लिए हैं. ओके. You can write it down. Progeny is always preformed in human sperm or ovum. This is very small miniature called homunculus, and organism produced before fertilization, and it will grow after fertilization also. उसके बाद आते हैं हम डार्विन पैनजेनेसिस थ्योरी में. उसने बोला था कि each body part of an organism produce small physical structure which is called as gamules, okay, which carry information for development of specific body part. And this is the characters inherited across generation to generation. So डार्विन ने एक आइडिया दिया था कि जो कुछ करेक्टर्स होते हैं वो वन जनरेशन टू डिफरेंट सेकंड नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रेवल होते हैं, पास ऑन होते हैं. सो डार्विन ने बेसिकली एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो. राइट इट. Each body part of an organism produce small physical structure called gamules, also called as pangene. It carries information for development of specific body part, and the characters are inherited across generation to generation. So basically, Darwin tried to explain the physical basis of inheritance. Okay, next one is inheritance of acquired characters. This is given by लेमार्क. लेमार्क का नाम तो सबने सुना होगा. लेमार्किज्म एक थ्योरी है जिसने जिराफ के ऊपर एक थ्योरी लिखा था. उसने बोला था कि characters are acquired by organism, they are inherited to the next generation. He told about acquired characters. Okay, like giraffe. Giraffe का गर्दन initially is not long.
इतना लंबा नहीं था। उसके जैसे ही अडेप्टेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, उसने अपने आप को अडेप्ट किया कि वो बड़े टॉल ट्रीज से पत्तों को खा सके, अपने आप को अडेप्ट कर सके। ओके, तो वो एक ट्रेट बाद में आया था जिराफ का, उसने एक्वायर किया था वो करेक्टर, और वन जनरेशन टू नेक्स्ट टू जनरेशन अभी तक चलता है। दिस इज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। उसके बाद लास्ट थ्योरी इज गिवन बाय ऑगस्ट वेइसमैन। उसने दिया था जर्म प्लाज्म थ्योरी इन मिड सेंचुरी में। उसने बोला था कि टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल्स। और ऑर्गेनिज्म दो टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, उनको बोलते हैं सोमैटोप्लाज्म, जर्म प्लाज्म। और जो सोमैटोप्लाज्म होता है वो बॉडी सेल, बॉडी में बनाता है, और जो जर्म प्लाज्म होता है वो मिलके गैमीट सेल बनाता है। और बॉडी सेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जीन्स को इनहेरिट करने के लिए। ओके, बिकॉज बॉडी सेल्स इज नॉट इनहेरिटेबल, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। और दिस आर डायरेक्ट, जर्म प्लाज्म इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस, एंड इसके चेंजेस इनहेरिटेबल भी होते हैं। ओके, this is the theories of inheritance. Now we will move to Mendelian inheritance. मेंडल का जो ईरा था वो ईरा था 1822 से 1884 तक। उसने पूरा रिसर्च का जो वर्क किया 1822 से 1884 के बीच में, उसके बारे में हम अभी पूरा स्टडी करेंगे। उसने वर्क किया था गार्डन पी पे। दिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी, स्पाइसम सेटिवम, एंड फैमिलीज पेपिलियोनेसी एंड फैबेसी, और इट इज कॉल्ड एज फैबेसी ऑल्सो। एंड इसके क्रोमोसोम नंबर थे टोटल 7। और डिप्लॉयड बोलते हैं, डिप्लॉयड होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें n इज द क्रोमोसोम सेट, 2n इज, देन वी कैन, तो हम बोल सकते हैं कि 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर है, लेकिन है ये डिप्लॉयड। ओके, मेंडल ने जो काम किया था, उसने बोला था कि जो उसके लिए जो काम करना बहुत इजी था, बिकॉज उसने जो ट्रेट और जो प्लांट सिलेक्ट किया था वो बहुत ही इजी टू स्टडी था, बिकॉज उसका इजी हाइब्रिडाइजेशन हो जाता था, और इजीली वेल डिफाइंड करेक्टर्स उसके थे, एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल था, जो इजीली आपको आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए जब स्टडी करना होता तो हम इजीली थोड़ा टाइम के बाद ही नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगा और उसमें हम स्टडी कर पाते थे। और जो कंट्रास्टिंग ट्रेट उसका, उसके सारे के सारे ट्रेट्स ही कंट्रास्टिंग मिले उसको। जैसे सीड शेप के लिए उसको राउंड एंड रिंकल, और कोई डिफरेंट ट्रेट नहीं मिला। सीड कलर हो गए येलो एंड ग्रीन, पॉड शेप, ये सारे के सारे कैरेक्टर उसके इन 7 क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे, और ये सारे थे कंट्रास्ट में। ओके, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसने जो लॉ दिया था, बिफोर गोइंग टू 3 लॉ ऑफ मेंडल, एंड मैं सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एलील्स। ये सारे के सारे टर्म्स हम आगे जाके यूज करेंगे। ये है एलील्स, वाइल्ड टाइप एलील्स, म्यूटेंट एलील्स। एंड सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि जीन क्या होता है। जीन होता है एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एलील्स। और एलील्स क्या होता है? एलील इज सेगमेंट ऑफ डीएनए जहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। यही एलील्स एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन टू मूव करते हैं इन फॉर्म ऑफ जीन्स। ओके, हम बोलते हैं कि पेरेंट्स के इसी के जीन आए होंगे, वो जीन्स क्या होते हैं? वो जीन्स ही एलील्स होते हैं। और एलील्स क्या हो? सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये दो क्रोमोसोम है, ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम हम बोलेंगे इसमें। ये एक क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है। दोनों एक पेरेंट से, एक मदर पेरेंट से आया है और दूसरा फादर पेरेंट से आया है। जो मदर पेरेंट से आया है ये इसमें ये वाला अलील है, और फादर से डिफरेंट अलील्स है। ये पूरा कैपिटल ई और स्मॉल टी यू कैन सी हेयर इज अ जीन, 2 different alleles. Okay, ये capital E small e is alleles, 2 different alleles of a gene. Okay, और ये capital E और small e different है। capital E small e है तो इसको इसलिए बोले हैं heterozygous alleles। ये small d दोनों small d है तो इसलिए इसको homozygous alleles बोला गया है। Okay, I will एक्सप्लेन फर्स्ट अबाउट व्हाट इज वाइल्ड टाइप अलील्स। वाइल्ड टाइप अलील्स वो हो गए जो कॉमन फॉर्म ऑफ अलील, जो जनरेशन टू जनरेशन आपके आ रहे हैं। जैसे कि आई का कलर या आई का शेप क्या होगा, जैसे वन पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में जा रहे हैं करेक्टर्स,
डेवलप आ रहे हैं, मतलब कि कॉमन है, वो कॉमन फॉर्म ऑफ एलील है जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। आफ्टर 1000 years ऑफ जनरेशन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसमें रिकम्बिनेशन होने की वजह से ना म्यूटेशन प्रोड्यूस हो जाती है। म्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि जो जो कॉमन फॉर्म ऑफ एलील वो डिफरेंट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे म्यूटेंट एलील्स। और ये बहुत ही रेयर होता है क्योंकि बहुत सारी जनरेशन के बाद ये आता है म्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद मैं बताती हूँ कि व्हाट इज डोमिनेंट एलील्स। डोमिनेंट एलील्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल ई और स्मॉल टी है, ये हेटेरोजाइगस एलील तो हुआ, लेकिन कैपिटल ई को हम बोलेंगे डोमिनेंट एलील और स्मॉल ई को बोलेंगे रिसेसिव एलील। जो कैपिटल एलील होता है वो मास्क करता है इफेक्ट को, स्मॉल ई के इफेक्ट को हिंडर कर देगा, क्योंकि इट इज डोमिनेंट अलील, इसीलिए इसको डोमिनेंट अलील बोलते हैं। क्योंकि ये ई का अलग से होगा, जैसे कि हम पढ़ते हैं टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, टोल एलील। ओके, वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि कैपिटल सी है, होमोजाइगस है और ये डोमिनेंट हुआ, डोमिनेंट अलील्स बोलेंगे, इसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट अलील। रिसेसिव अलील में आया, ये इफेक्ट अपना तभी भेजता है होमोजाइगस स्टेट में होता है तभी। जैसे कि अगर कैपिटल डी और स्मॉल डी एक साथ होता तो उसको हम रिसेसिव एलील नहीं बोल सकते, उसको डोमिनेंट एलील ही बोलेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों होमोजाइगस फॉर्म में हुआ स्मॉल डी तो उसको हम होमोजाइगस रिसेसिव एलील बोल सकते हैं। ओके, ये इसका exerts its effect only in the homozygous state. Likewise, homozygous allele को मैंने आपको पहले ही बता दिया, identical alleles of a trait. Identical means capital T और small d. These are both are the homozygous alleles. Heterozygous means capital T small t, capital E small e. Alleles of the same genes but have non-identical alleles. इसको बोलेंगे heterozygous alleles. ये जो सारी टर्म्स अभी हमने पढ़ी हैं, डोमिनेंट, रिसेसिव, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, ये सारे इसके बेसिस पे हम आगे पूरी स्टडी करें। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बेसिस पे ही पूरा का पूरा जेनेटिक्स डिपेंडेंट है। मेंडल के जितने भी प्रिंसिपल हैं, ये मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, उसके बेसिस पे ही सारा न्यूमेरिकल भी इसी के बेसिस पे आपको सारे पेपर में सी सेक्शन में जितना भी न्यूमेरिकल आता है सारा क्वेश्चन जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल से ही आता है। बड़े क्वेश्चन 4 मार्क्स का जो आता है कंसेप्ट बेस है पूरा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसलिए आप बेसिकली टर्म्स को समझो, कंसेप्ट को समझो, उसके बाद कंक्लूड करो कि क्या रिजल्ट आता है। जब तक आप टर्म्स और कंसेप्ट को नहीं समझ में पाएंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और ना ही आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे। बेसिकली जेनेटिक्स से पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट आता है। सो वी विल मूव ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले आप लोगों को सबको पता ही है कि सबसे पहले 2 पेरेंट्स होगा, क्रॉस होगा, फिर F1 प्रोजेनी बनेगी, फिर F2 प्रोजेनी बनेगी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। ऐसे ही पेरेंट 1 में क्या है, टॉल प्लांट। यहाँ पे हम 2 सिंगल ट्रेट को लेके चल रहे हैं, इसलिए हम इसको मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल हाइब्रिड। ओके, मोनो मीन्स सिंगल। ओके, ठीक है। पेरेंट 1 जनरेशन, यहाँ पे ये हुआ पेरेंट 1, ये हुआ पेरेंट 2। 1 इज मेल एंड 1 इज फीमेल। और जब नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, गैमीट्स का सेपरेशन होगा। यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है गैमीट बनने का, कैपिटल टी बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों ही कैपिटल टी है। और इसमें क्या है, पेरेंट 2 में क्या बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी है ये एक ही एलील की, वो है रिसेसिव एलील ड्वार्फ प्लांट का स्मॉल टी। ये जो मैं बोल रही हूँ टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, ये एक फिनोटाइप इसको बोलेंगे फिनोटाइप ऑफ द एलील्स। और जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। ओके, इसको हम जीनोटाइप बोलेंगे, जीनोटाइपिक फॉर्म। और जो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमको सामने दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे फिनोटाइप। ओके, सो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे कैपिटल टी आया, इधर से गैमीट बना स्मॉल टी का। जब F1 जनरेशन बनेगी तो दोनों का एलील आएगा, दोनों से कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी से आपका जो बना यहाँ पे ये इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, सारे के। और कैपिटल टी क्या आपको बताया मैंने,
कैपिटल इज ए डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील क्या करता है, हिंडर करता है, हाइड करता है स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, उसको ड्वार्फ कैरेक्टर शो होने ही नहीं देगा, ठीक है। इसलिए सारे के सारे जितने भी F1 में प्लांट्स होंगे सब के सब टॉल होंगे, लेकिन हम इंटरनली जीनोटाइप उसका नहीं जान पाएंगे। सामने तो हम देख पाएंगे कि उसने हमारा टॉल प्लांट है, लेकिन उसका जो जीनोटाइप है वो हम पता नहीं कर पाएंगे कि वो कैपिटल टी है। लेकिन F1 जनरेशन में सारे के सारे कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। और उसके बाद सेकेंड जनरेशन के लिए सेल्फिंग होगा। सेल्फिंग में क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो F1 जनरेशन के एलील्स हैं, जीन्स हैं, ये आपस में क्रॉस करेंगे। क्रॉस होने के बाद एक एक गैमेट को, यहाँ से गैमेट फॉर्मेशन होने के लिए कैपिटल टी के आने की भी प्रोबेबिलिटी है और स्मॉल टी आने की भी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन उससे पहले जब यहाँ पे पेरेंट वन था, इसमें एक ही फॉर्म था एलील का, कैपिटल टी ही था, डिफरेंट नहीं था। तो यहाँ से एक ही एलील के आने की प्रोबेबिलिटी थी, और यहाँ पे टू डिफरेंट एलील के आने की प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पे भी टू डिफरेंट एलील आने की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि इसकी टी की इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि ये इस टी के साथ फ्यूज होके एक गैमेट यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में जाए, ठीक है। इस टी की ये टी इस वाले टी के साथ फ्यूज होके नेक्स्ट जनरेशन में जाए। तो चार टाइप के कॉम्बिनेशन, इस इवेंट से चार टाइप के कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, आप जैसे कि देख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी हमें पहले ही पता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर एक साथ में आएगा तो डोमिनेंट अलील अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, तो वो टॉल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और स्मॉल टी साथ में आ गया तो इसका तो एक्सप्रेशन होने के बाद ड्वार्फ ही आएगा प्लांट, ठीक है। तो जीनोटाइपिक रेशो क्या आएगा, इसका जीनोटाइपिक रेशो होता है और एक होता है फिनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो हमें मैंने पहले ही बताया, जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी की फॉर्म में होगा, और जो फिनोटाइप होगा टॉल और ड्वार्फ की फॉर्म में होगा। जीनोटाइप यहाँ पे टॉल कितना है, टॉल कैपिटल टी कितना आया है, चार कॉम्बिनेशन बना है। कैपिटल टी आने की प्रोबेबिलिटी कितना, 1। और ये हाइब्रिड आने का कितना हुआ, 2 हाइब्रिड आया, उनका 2 आ गया। और यहाँ पे स्मॉल टी कितना आया, 1। तो हम बोल सकते हैं कैपिटल टी प्योर होमोजाइगस लाइन आने की, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट लाइन आने की प्रोबेबिलिटी है 1 बाय टोटल का पार्ट बाय टोटल। प्रोबेबिलिटी का कैसे डिफाइन करते हैं हम, पार्ट ऑफ द टोटल, ठीक है। अब इसका टोटल कितना है, 4 इवेंट है, डिवाइडेड बाय 4 किया, और पार्ट कितना है, अब 4 में से इसका आने की प्रोबेबिलिटी 1 हुआ, 1/4 हो गया। ऐसी कैपिटल टी स्मॉल टी के आने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 4 इज 2, देन 2/4, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी हुआ 1/2। ओके, स्मॉल टी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा यहाँ पे भी। ओके, एज इट इज नाउ फिनोटाइपिक रेशो के अंदर कैसे आएगा, कैपिटल टी सारे की कैपिटल टी भी एक्सप्रेस होके मॉर्फोलॉजी दे रहा है टॉल का, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी मॉर्फोलॉजी दे रहा है टॉल होने का। तो कैपिटल टी हो गया पूरा टॉल, तीन आउट ऑफ 4 3 टॉल आया, 3 हुआ, एक स्मॉल आया, ड्वार्फ आया, तो उसका 1। तो ऐसे ही इसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 3/4 and 1/4. After monohybrid cross, we will move to the back cross. Back cross is the cross where F1 progeny crossed with either of the parent type of the plant. It can be homozygous recessive or homozygous dominant. Okay, if we cross hybrid plant with the homozygous dominant allele, okay, it will give us the results all are tall. It has no significance. But in test cross, where parent is hybrid, one parent is hybrid and another is homozygous recessive, यहाँ पे हमको दो टाइप का फिनोटाइप मिलेगा, टॉल एंड ड्वार्फ बोथ। यहाँ से प्रोबेबिलिटी आएगा टी, कैपिटल टी आने का गैमेट में, और स्मॉल टी आने का, इधर से स्मॉल टी आएगा। ओके, देन कैपिटल टी is randomly combined with small t and it will give tall allele, and small t give dwarf allele. The ratio of getting both the alleles is here is 1:1 because 50% are tall and 50% are dwarf.
टेस्ट क्रॉस का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हमें पता लग जाता है कि जीनोटाइपिंग क्या था, जीनोटाइप क्या था एक्चुअली। जब हम F1 में यहाँ पे हाइब्रिड है पर इसका फिनोटाइप तो टॉल है ना, लेकिन उसके बाद जब F2 क्रॉस होगा तो उसके अंदर ऑल आर नॉट टॉल टाइप, उसके अंदर कुछ होमोजाइग ड्वार्फ टाइप भी आ जाएगा। ड्वार्फ आने से क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि जो पेरेंट था यहाँ पे F1 हाइब्रिड था, विच इज इन हाइब्रिड फॉर्म। ठीक है, सो मेनली टेस्ट क्रॉस कंफर्म द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ठीक है, okay, now we will move to law of dominance. According to this law, traits is controlled by paired unit called factor, which we have already discussed, that is allele, and one form of allele suppresses the presence of another allele. Law of dominance क्या बताता है? डोमिनेंट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, जो कैपिटल टी है वो दिस इज द डोमिनेंट एलील, वो स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है अगर वो दोनों साथ में होगा तो। क्या स्मॉल टी अपना कोई भी फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्या एक्सप्रेस होगा? डोमिनेंट एलील उसको हिंडर कर देगा, उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिखा है फिनोटाइप ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी इज टॉल, दिस इज डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ तो तब होता है जब सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में सबने पढ़ा और सुना होगा। सेल डिवीजन में मियोसिस, माइटोसिस एंड वहां पे एक स्टेज आता है प्रोफेज के बाद एनाफेज 2। एनाफेज 2 के टाइम पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर्क करता है कि ये गैमेट्स का जब सेग्रीगेशन होता है उस टाइम पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होता है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट it is also known as purity of gametes law, purity of gametes law। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल शो यू कि कैपिटल टी था वन पेरेंट, एक स्मॉल टी, सॉरी इसमें थोड़ा ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं, तो यहां से क्या आएगा? कैपिटल टी आएगा और यहां से आएगा स्मॉल टी। यहाँ पे क्या लिखा है? बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन गेट सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे कैपिटल टी दूसरे कैपिटल से डिफरेंट गैमेट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि गैमेट क्या होता है हमारा? नॉट डिप्लॉयड नहीं होता, हैप्लॉयड होता है। उस हैप्लॉयड में जो गैमेट फॉर्म होगा ये कैपिटल टी और ये प्योर होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कैपिटल टी के पूरा होगा, क्रोमोसोम्स पे पूरा का एलीलिक फॉर्म इसका कैपिटल टी वाला होगा। इसमें स्मॉल टी वाले में ये सेपरेट जाएगा, इसका सेकंड स्मॉल टी सेपरेट जाएगा, इसलिए इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ओके, इसमें रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट के साथ रैंडमली फ्यूज होगा। ठीक है, एंड देन दिस विल वर्क ओनली इन डिप्लॉयड पॉपुलेशन गैमेट्स। ठीक है, जहां पे गैमेट्स प्योर टाइप पे होगा। अगर पॉलीप्लॉइड गैमेट्स होगा, पॉलीप्लॉइड गैमेट्स में क्या होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड वन गैमेट में कैपिटल बी आ रहा है, स्मॉल टी भी आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल हेक्साप्लॉइड बीट होता है। हेक्साप्लॉइड में क्या होगा? 6, एक ट्रेट को जो कंट्रोल करेंगे वो 6 एलील करेंगे। ठीक है, डिप्लॉयड में क्या होगा? 2 एलील कर रहे हैं, तो ये सेपरेट हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर वो हेक्साप्लॉइड होगा तो एक गैमेट में 3 एलील जाएंगे, मान लो कैपिटल टी भी जा सकता है, स्मॉल टी भी जा सकता है उसके अंदर। ठीक है, मानो कि इसमें स्मॉल टी 2 हो गए और 1 कैपिटल टी एक गैमेट के अंदर, तो ये पॉलीप्लॉइड भी हम इसको प्योर टाइप का नहीं बोल सकते। ठीक है, दिस इज हेक्साप्लॉइड बीट, so it only work in diploid population type. Okay, this is the law of segregation. Okay, अब थोड़ा दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये सारा आपका
सेग्रीगेशन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे कि इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस 40 इंडिविजुअल्स आर प्योर डोमिनेंट। हर एक पूरी लाइन में आप एक एक वर्ड का मीनिंग अगर समझ पाएंगे ना तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं सी पार्ट सेक्शन में CSIR एग्जाम का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप समझो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आपके माइंड में एकदम से मोनोहाइब्रिड क्रॉस चला जाना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, अभी जो हमने पीछे पढ़ा है वो। ठीक है, 40 इंडिविजुअल प्योर डोमिनेंट। प्योर डोमिनेंट में आपका क्या हो गया, कैपिटल टी प्योर हुआ, डोमिनेंट हुआ। ठीक है, स्मॉल टी प्योर रिसेसिव बोलेंगे स्मॉल टी को। यहाँ पे कैपिटल टी की बात हो रही है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, देन द हाइब्रिड नंबर ऑफ प्रोजेनी विल बी, उसने बोला हमें ऑलरेडी पता है रेशो क्या होता है हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1। ओके, 1:2 में आएगा कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। 2 में क्या आएगा आपका, हाइब्रिड आएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, ये सेकंड थर्ड रेशो में क्या है, ये है प्योर रिसेसिव टाइप। प्योर रिसेसिव टाइप में स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, इसने बोला कि जो 40 इंडिविजुअल है वो प्योर डोमिनेंट प्रोजेनी का हुआ, मतलब प्योर डोमिनेंट हुआ। कैपिटल टी, इसका रेशो कितना है 1 और हाइब्रिड का रेशो क्या है 2। अगर 40 इंडिविजुअल प्योर डोमिनेंट हुआ तो हाइब्रिड नंबर ऑफ प्रोजेनी कौन सा होगा, इसका डबल होगा क्योंकि इसका रेशो 2 है, तो इसका आंसर होगा 80। बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप एक एक वर्ड को अच्छे से समझो। ठीक है, देन वी विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन। इन ए प्लांट वेराइटी रेड फ्लावर्स आर डोमिनेंट ओवर व्हाइट। यहाँ पे भी आपको हर एक टर्म को समझना पड़े। एक प्लांट वेराइटी है जिसमें रेड फ्लावर, मानो कि हम यहाँ पे टॉल के लिए हम ये दे रहे थे कैपिटल टी और इसके लिए हम स्मॉल आर और कैपिटल आर देंगे। उसने बोला रेड फ्लावर्स आर डोमिनेंट ओवर व्हाइट, मतलब कि ये इसका फिनोटाइप रेड हुआ, डोमिनेंट है। ठीक है, और इसका फिनोटाइप क्या हुआ, ये हुआ व्हाइट। ठीक है, तो इसने बोला कि जो इसका हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ, हाइब्रिड क्या प्रोड्यूस होगा इसका, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसको बोला सेल्फ एंड रेड फ्लावर प्लांट सिलेक्टेड। अच्छा, इसको सेल्फ किया, सेल्फ करने पे क्या कॉम्बिनेशन आएगा हमको पता ही है, 1:2:1। ठीक है, वन पार्ट आएगा रेड कलर, हाइब्रिड वाला भी रेड कलर होगा क्योंकि वो रिसेसिव एलील को एक्सप्रेशन को हिंडर कर दे रहा है, हाइड कर दे रहा है। और 1 आएगा आपका 1 आएगा व्हाइट टाइप। ठीक है, F1 हाइब्रिड इज सेल्फ एंड रेड फ्लावर्ड प्लांट सिलेक्टेड फ्रॉम F2। ठीक है, रेड कलर प्लांट हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, रेड कलर प्लांट कौन सा हुआ, ये 1:2 वाला भी रेड कलर प्लांट हुआ और 2 वाला रेशो वाला भी रेड कलर प्लांट हुआ। ठीक है, आपको पहले ही बताया कैपिटल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर वाला हुआ। ठीक है, तो उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओनली व्हाइट फ्लावर प्रोजेनी। उसने बोला कि हमने सिलेक्ट किया है कि रेड फ्लावर फ्रॉम F2 के अंदर से रेड फ्लावर लिया है कि उसने बोला कि ओनली व्हाइट फ्लावर प्रोजेनी होने की तो कुछ कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं होगी, तो क्योंकि हमने सिलेक्ट ही 1 कौन सा किया है, ये जो इसमें रेड फ्लावर है, तो इसका आंसर होगा नोट। ओके, इस तरीके से आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1 ट्रेट, डाईहाइब्रिड क्रॉस 2 डिफरेंट ट्रेट्स को लेके हम चलेंगे। ठीक है, 2 डिफरेंट ट्रेट्स में हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप अलग ट्रेट है, सीड कलर डिफरेंट सेकंड ट्रेट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया राउंड एंड येलो सीड, रिंकल एंड ग्रीन सीड। जो राउंड कलर आ रहा, राउंड शेप आ रहा है उसका पी का, वो कैपिटल आर की वजह से आ रहा है। और येलो सीड है, ये दोनों डोमिनेंट अलील है। येलो कलर डोमिनेंट है, राउंड शेप जो है सीड का वो डोमिनेंट है। और यहाँ पे स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए और ग्रीन कलर के सीड के लिए वाई। ठीक है,
यहाँ पे जब हमारा गैमेट फॉर्मेशन होगा, कैपिटल आर से 1 आर आएगा, कैपिटल वाई से 1 वाई आएगा, कैपिटल वाई। ओके, यहाँ पे से भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, ये रैंडमली आ जाएगा। इसकी दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, ये बन गया हमारा F1 हाइब्रिड, ये हमारा हो गया F1 हाइब्रिड। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, इसका सेल्फिंग होगा। सेल्फिंग में इसका इसी के साथ सेल्फ होगा। पुनेट एक साइंटिस्ट था, जिस रिसर्चर था, उसने पुनेट स्क्वायर करके पुनेट स्क्वायर का डिस्कवरी किया था। पुनेट स्क्वायर से बहुत इजीली हम सेल्फिंग करवा के रिजल्ट्स को इजीली हम देख सकते हैं। ये एक स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर से हम इजीली क्रॉसिंग के रिजल्ट को देख सकते हैं। सेल्फिंग होने के बाद क्या होगा, क्योंकि एक ट्रेड को लेके चलो तो वो तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो 2 डिफरेंट ट्रेड, 3 डिफरेंट ट्रेड, उन सबको करने के लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो इसको पुनेट स्क्वायर ने क्या किया, पुनेट स्क्वायर दे दिया। ठीक है, सेल्फिंग में क्या होगा, यहाँ पे ये गैमेट प्रोड्यूस हुआ था, ये गैमेट प्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 4 टाइप का कॉम्बिनेशन होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये 4 टाइप का कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा। और ये 4 टाइप का कॉम्बिनेशन आपस में कंबाइन होकर डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का गैमेट्स बनाएगा, गैमेट्स बना के डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेनी बनाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई इस वाले कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये वाला फिर इसके साथ होगा दोबारा से, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई से होगा तो कंबाइन होके क्या बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरीके से पूरा का पूरा आपस में मल्टीप्लाई करके ये पूरा का पूरा हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। इसमें हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है टोटल 16। ओके, तो इस तरह जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने पूरा देखा था, वैसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे हमारा फिनोटाइप क्या आ रहा है, जीनोटाइप क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है। फिनोटाइप आने की हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, राउंड रिंकल्ड, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये 4 टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये तो हमारा फिनोटाइप हुआ, लेकिन जीनोटाइप में किस तरह से कॉम्बिनेशन होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या डोनेट कर रहा है, राउंड एंड येलो। जहां पे केवल कैपिटल आर और कैपिटल वाई हुआ वो होगा डोमिनेंट एलील, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई दोनों ही एक्सप्रेस होगा तो राउंड एंड येलो होगा। ठीक है, जिसके अंदर भी इस पूरे स्क्वायर में जितना भी फिनोटाइप राउंड एंड येलो होगा उसका क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख लिया। और फ्रीक्वेंसी हम कैसे, हम बिना पुनेट स्क्वायर के भी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है 2 की पावर n, और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन। अब ये देखो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कोई यहाँ पे हेट्रोजाइगस जीन नहीं है। हेट्रोजाइगस का मतलब आपको पता है, एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा, हाइब्रिड होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है, सेकंड वाले कॉम्बिनेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर एक ही है। ये एक होने की वजह से यहाँ पे 2 की पावर एक हो गया 1, 2 की पावर 1 की वजह से हुआ यहाँ पे 2। इसके पूरा इसके अंदर 16 के अंदर 2 टाइप जो है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। यहाँ पे एक ये रहा और एक ये रहा, ये 2 हमारे पुनेट स्क्वायर में होगा। इस तरीके से यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई होने की वजह से एक हेट्रोजाइगस हुआ इसके अंदर, तो इसमें 2 की पावर 1 2 हुआ। अब यहाँ पे देखो दोनों हेट्रोजाइगस है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों हेट्रोजाइगस हुआ, 2 की पावर 2 देन 4, सबको काउंट करेंगे तो क्या हुआ 9। ठीक है, ऐसे ही राउंड ग्रीन कब होगा, जब राउंड का डोमिनेंट एलील क्या है, आर कैपिटल आर, और इसका ग्रीन तभी आएगा जब दोनों स्मॉल वाई होगा। तो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बन रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई और ये वाला।
स्मॉल वाई जिसमें भी होगा उसके अंदर ग्रीन होगा और कैपिटल आर वाला होगा तो उसमें राउंड होगा। तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा देन रेशो आता है 9:3:3:1। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन अगर इस चीज पे भी आ सकता है कि F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कितने नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस हुआ। हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस करने का एक फॉर्मूला ये है 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n। n हमें हमारा क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितना बन रहा है हेटेरोजाइगस जीन, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ही बन रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितना हेटेरोजाइगस है, 1। ठीक है, उस तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है, हेटेरोजाइगस कितना हुआ कॉम्बिनेशन में, ये दोनों देखो, एक ये 2 हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2 हुआ तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, देन 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। डाइहाइब्रिड क्रॉस में 5 टाइप्स के हेटेरोजाइगस बने। 5 टाइप के हेटेरोजाइगस आप यहां से भी देख सकते हो, विजिबल है आपको क्लियरली। एक हेटेरोजाइगस ये 1, एक हेटेरोजाइगस 2, 3 एंड 4 एंड 5। दिस मैं मार्क कर देती हूँ एक बार। एक ये बना हेटेरोजाइगस, एक ये हेटेरोजाइगस बना, एक ये हेटेरोजाइगस बना, ये हेटेरोजाइगस बना और एक ये हेटेरोजाइगस। बाकी सारे क्या है, होमोजाइगस। 1 2 3 4 5। तो इस फॉर्मूला से हमें पूरा 5 का पता लग गया। ऐसे ही ट्राइहाइब्रिड का करने की जरूरत नहीं है। ट्राइहाइब्रिड में क्या होगा, यहाँ पे 3 हेटेरोजाइगस बनेंगे, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 और यहाँ पे क्या हो गया 19 हमारा टोटल नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस आया। इस तरीके से आप आगे क्वेश्चन इसके बेसिस पे सारे आएंगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे तो आप अपने आप से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब आ जाते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में प्रोबेबिलिटी का कैसे बनता है। जैसे कि हमने प्रोबेबिलिटी कैसे होगा, 2 डिफरेंट इंडिपेंडेंट इवेंट का एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। दिस इज फॉलोड एज ए प्रोडक्ट रूल। ओके, अगर कोई इधर इंडिपेंडेंट रूल हो रहा है, अब राउंड कलर राउंड शेप फॉर्म हो रहा है पी का, वो एक इंडिपेंडेंट इवेंट है किससे, येलो कलर से। तो राउंड और येलो का आपस में आने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या हुआ था, राउंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप पता है 1:2:1 होता है। अब राउंड क्या है, डोमिनेंट एलील है, हमको पता ही पहले से ही। ठीक है, राउंड का डोमिनेंट एलील होने की वजह से उसका आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 3/4 होगा। ठीक है, डोमिनेंट एलील की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगा। जैसे कि टॉल था, टॉल 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 3 टाइम्स था, हेटेरोजाइगस में भी टॉल था तो 3/4 हुआ। यहाँ पे रिंकल्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रिंकल्ड आएगा जब वो रिसेसिव फॉर्म में है तभी, तो इसकी होगी 1/4। ऐसे ही सेम क्या होगा, सीड कलर का इंडिपेंडेंटली अगर हम देखेंगे तो येलो इज अ डोमिनेंट एलील, येलो की आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर इन दोनों को हम इंडिपेंडेंट इवेंट है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में देखेंगे, साथ में आने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो दोनों की साइड को हम उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, राउंड और येलो का आपस में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अब राउंड के आने की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, 3/4 इंटू, और येलो के आने की इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है प्रोबेबिलिटी 3/4, 9/16, इन दोनों का आपस में कंबाइन होकर 9/16 हो जाएगा। ऐसे ही राउंड एंड ग्रीन, राउंड इज 3/4 एंड ग्रीन इज 1/4, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3/16। ऐसे रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड 1/4 एंड येलो इज 3/4, देन probability of to come both of them together is 3/16, and for wrinkled and green it is 1/4 into 1/4, it is 1/16। इसके बेसिस पे आगे क्वेश्चंस आएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो। और हम आते हैं हाउ टू कैलकुलेट जीनोटाइपिंग एंड फिनोटाइपिंग रेशो। जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने जो किया था वो था, उसमें रेशो आया था 1:2:1, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड ये हुआ हेटेरोजाइगस का कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मोनोहाइब्रिड के 2 क्रॉस हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिंग रेशो। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द रेशो ऑफ ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, ऑप्शन आते हैं 4,
तो उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है क्या हो सकता है रेशो। उसको करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, एक डायहाइब्रिड क्रॉस को लिया, डायहाइब्रिड क्रॉस को फिर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ किया तो ट्राई हाइब्रिड हुआ, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जो इसको मल्टीप्लाई करके आया, फोर वन को पहले इससे करेंगे मल्टीप्लाई, उसका रेशो लिखेंगे, टू को इससे करेंगे उसका रेशो लिखेंगे, वन को फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेशो आया, पूरा रेशो हुआ जीनोटाइपिंग रेशो ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। सेम टू सेम फिनोटाइपिंग रेशो में हम करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिंग रेशो क्या था, टोल और ड्वार्फ का, टोल 3 टोल था और एक ड्वार्फ था, 3:1 था। उसी तरीके से 3:1 को दोबारा से 3:1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशो आएगा 9:3:3:1। देन ट्राइहाइब्रिड क्रॉस को सिंपली उसी तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रेशो आता है वो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का, ऐसे ही चलता रहेगा, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस, पेंटाहाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस, ये सब पूरा मतलब इसी बेसिस पे आगे चलेगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इवन इससे हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको CSR नेट में आ जाएगा, एक तो बी सेक्शन में आ सकता है और एक आपका सी सेक्शन में आ सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।